Good morning, students. So, today we are going to start with the 12th chapter of your textbook, which is friction. And this chapter also comes under the portion of physics. So, we already have done one chapter, which is force and pressure, and the next chapter we are going to start is friction. Okay, so let's have some introduction about friction. Uh, Let me give you some examples, right? For example, when you are driving, or suppose you people ride on the bicycle, so whenever you apply the brakes of a bicycle, so what will happen? The cycle stops, right? When you apply the brakes. More examples that you might have seen said any moving object that slows down and stops after some time, because even then we are not applying any external force. For example, a ball is rolling over, moving down and on the ground, and after some time it will stop its motion. We are not applying any force, but even then it gets stopped. So why does this happen? Okay, one more common example is that we have seen that people slip over whenever they put on their step on the banana peel. So why does this happen? Why they get easily slipped down if they uh, keep their feet on the banana peel? So one more things you have observed, that it is very difficult for people to move on a smooth surface, or you can say on a wet floor, right? So these all the answers of these questions will be given by this chapter, that is friction. So you already have heard about this term, that is friction. So in detail today we will study about this force, this friction. The first topic is force of friction. Okay, so what this force of friction is? Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. Force of friction is a kind of force. You can say it's a type of force, you can also say. In earlier chapter we studied about force. Force is what? A push and a pull. Okay, that we call it as a force. Now, what is the force of friction? The force of friction is also the force, but this force, it opposes the motion of an object over a surface. Okay, the force of friction acts between the object and the surface. तो पहली बात ये कि ये फोर्स होती क्या है? ये फोर्स होती है जब दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है. ठीक है, that is what written here, you can see here. The force of friction acts between the object and the surface. Okay, so it exists when the two objects, two surfaces, they come in contact. For example, a ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to force of friction between the ball and the ground. If we stop pedaling a bicycle, what will happen? It gradually slows down and comes to a stop due to force of friction between the wheel and the rope. Now see the direction of force. This is one object, this is the second object. Both of these objects are in contact with the surface. Okay, the surfaces are in contact. It means there is a force of friction here. So what we said in the direction there in the definition, which opposes the motion of an object. अगर हम लोग इसको इस साइड को पुश कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये 1 है, ये 2 है, एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट. व्हाट वी सेड इज दिस एग्जिस्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये सरफेस है. तो यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब हमने क्या किया? हम इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं. ठीक है, मोशन जो है इस डायरेक्शन में है. देन व्हाट विल हैपन? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में. वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस. तो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस साइड को पुश करते हैं तो इन दोनों के यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है और वो उसको इस डायरेक्शन में मूव करने को, इस डायरेक्शन में, इस साइड को इसकी डायरेक्शन होती है. अब ये ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है
अप्लाइड फोर्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर पे कोई टेबल होगा, ठीक है, थोड़ा सा हैवी टेबल है, आपने उसको रूम पे रखा है, कहीं पे भी रखा है, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, तो फ्लोर और जो टेबल के जो बॉटम है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। अब आप अगर थोड़ी सी फोर्स आप उस टेबल पे लगाओगे तो वो टेबल मूव नहीं करेगा। फोर्स तो आप लगाओगे लेकिन वो मूव नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो सरफेस है, फ्लोर है और टेबल का जो बॉटम का जो है उसके साथ कांटेक्ट में है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है और आपकी अप्लाइड फोर्स कम है। लेकिन आपने जैसे ही अपनी फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, ठीक है, उसको थोड़ा और ज़ोर से पुश किया, फोर्स लगाया, तो क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। उस समय क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, आपने उससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स दे दी, तो क्या होगा, वो बॉडी आगे मूव कर जाएगी। तो यही एग्जांपल यहाँ पे है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे इस डायरेक्शन में, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जब तक इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इस फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। समटाइम्स ऐसा नहीं बोल सकते कि हर केस में फ्रिक्शन सेम रहता है, कुछ एक फैक्टर्स भी हैं विच अफेक्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ सी, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दे आर नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड इज हाउ हार्ड द सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। Friction is less on smooth surface, friction is more on a rough surface। तो पहली चीज़ हमने बोली कि नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो भी दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है उनका नेचर कैसा है, नेचर इन द सेंस उनका मटेरियल कैसा है, स्मूथनेस कैसी है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई दो सरफेस बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि जो बहुत स्मूथ हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ की फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनका नेचर कैसा, उनका मटेरियल कैसा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितना होगा। सेकंड है हाउ हार्ड द सरफेसेस प्रेस टुगेदर। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कितना हार्ड है, उसका कितना वेट है, कितना ज़्यादा उसको प्रेस किया हुआ है दूसरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, अगर लाइट वेट बॉडी है, मतलब एक फ्लोर के ऊपर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, या आप यही एग्जांपल ले लो कि आपने एक एम्प्टी कार्टन रखा हुआ है, ठीक है, आपने वो सरफेस के ऊपर रखा हो, तो एम्प्टी कार्टन का इतना वेट नहीं है। अगर वेट नहीं है तो उतना हार्डर प्रेस भी नहीं होगा, उसका उतना वेट भी नहीं जा रहा होगा, तो दोनों के बीच में इतना कोई प्रेशर नहीं है फ्लोर के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का, तो उन दोनों के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा। हाँ, अब अगर इस कार्टन को आपने भर दिया बुक्स से, आपकी नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, जो भी पुरानी बुक्स है उससे भर दिया पूरा, अब क्या हो गया, वो कार्टन जो है उसका वेट बढ़ गया। अब जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स वो फ्लोर के ऊपर डालेगा, अब उतना ही प्रेशर वो उस फ्लोर के ऊपर डाल रहा है जिसके ऊपर उसको रखा हुआ है। तो फ्लोर और उस कार्टन के बीच में जो सरफेस इस कॉन्टैक्ट में है, जहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, उसमें क्या हो गया, ज़्यादा हार्डर प्रेस हो गया वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, अब फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा हार्डर उसको प्रेस किया होगा हमने, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और दूसरी चीज़ इसने बोली है फ्रिक्शन इज़ लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना पील के ऊपर हम लोग जल्दी क्यों स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि उसका सरफेस जो होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है बनाना पील का, और जैसे हम पैर रखते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से हम स्लिप डाउन कर जाते हैं। जैसे आपका वेट फ्लोर है, तो वेट फ्लोर में जैसे आप पैर रखते हो तो आपका पैर स्लिप कर जाता है, जस्ट बिकॉज द फ्रिक्शन इज़ लेस। ठीक है, अब देखो कि मॉल में या कहीं ऐसे बहुत स्मूथ टाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, आपके शूज़ इस तरह से हैं कि आपके शूज़ का सोल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो आपके लिए वहाँ पे वॉक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन कम है। तो जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, द रफ इज़ द सरफेस, द मोर इज़ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है।
Friction is more if the surface are pressed harder. That is what I told you. Friction is less if the surface are not pressed harder. ठीक है, अब जितना वेट होगा, अभी इस ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा. ये आप देख रहे हो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका अब जितना इसका वेट होगा उतना ही प्रेशर ये इधर इस पे डालेगा, सरफेस इन कांटेक्ट पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा. प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगी. जितना प्रेशर ये बॉडी कम प्रेशर डालेगी इस सरफेस के ऊपर तो इतना ही प्रेशर इसका फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा. ठीक है, अब आता है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कॉजेज होते क्या हैं, किस वजह से फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, friction is caused due to the interlocking of irregularities between the two surfaces in contact. ठीक है, फ्रिक्शन होता क्या है, किस चीज़ की वजह से फ्रिक्शन होता है. तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, इंटरलॉकिंग. ठीक है, जो सरफेसेस जैसे हमको देख नहीं सकते उसको, लेकिन आपको ये चीज़ को इमेजिन करना है कि जब भी सपोज आपकी नोटबुक है, उसको इमेजिन करिए आपने नोटबुक को रखा है टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल है या कोई भी चीज़ के ऊपर आपने रखा हुआ है. अब आपकी नोटबुक का जो सरफेस है जो टेबल के साथ कांटेक्ट में है और जो टेबल का सरफेस है जो नोटबुक के साथ कांटेक्ट में है, उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है. जैसे आप अपने हैंड्स इंटरलॉक करते हो, फिंगर्स इंटरलॉक करते हो ना, वैसे ही इंटरलॉकिंग हो जाती है. तो आप नोटबुक लगा लो और ये इनका सरफेस इन कांटेक्ट है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है. ठीक है, तो ये सरफेस इन कांटेक्ट, तो ये हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसमें इररेगुलरिटीज़ होती हैं. तो ये इररेगुलरिटीज़ की वजह से ये दोनों सरफेसेस जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं. मतलब इस तरह से है तो दूसरा सरफेस जो होता है इसके साथ इस तरह से इंटरलॉक हो जाता है. तो जितना हमने बात करी, जितना इररेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी, और इररेगुलरिटीज़ किस में ज़्यादा होती है, रफ सरफेस में. तो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. स्मूथ सर्फेसेस हैव minute irregularities between the two surfaces, that is what I told you, and rough surfaces have larger irregularities between the two surfaces. So the force of friction is more if the surfaces are rough. ठीक है, समझ में आया, क्योंकि फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, इररेगुलरिटीज़ की वजह से. जितनी ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी. अब इररेगुलरिटीज़ किस में ज़्यादा होती हैं, रफ सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रिक्शन होता है. दिस कॉजेज द फ्रिक्शन टू एग्जिस्ट. अब आते हैं हमारे पास, बहुत सिंपल है, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, दे आर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, बहुत सिंपल है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का ये सरफेस, ये जो ब्लैक लाइन मैंने लगाई, यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. इस बॉडी का बॉटम और फ्लोर का बॉटम जहाँ पे वो कांटेक्ट में आए वहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. तो इस तरह का जो फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है, इसने जितना इसका वेट है उसके वेट के बराबर फोर्स लग रही है इस सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से क्या है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने से एक फोर्स एग्जिस्ट करी है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और इस तरह के जो फ्रिक्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर ए सरफेस. ठीक है, तो इस तरह का जैसे आप स्लाइड करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को, तो इस तरह के केस में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, अब आप देखो कि इस सरफेस के ऊपर ज़्यादा देर तक ऑब्जेक्ट स्टे नहीं कर रहा है, वो यहाँ से मूव करते करते हुए नीचे आ रहा है. ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. थर्ड आता है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब आप बच्चा स्लाइड कर रहा है तो उसका इतना पोर्शन जो है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है. तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यही इतना ही पोर्शन इसके साथ यहाँ से था, फिर यहाँ पे आया, नीचे जाता जाता ऐसे नीचे चला जाएगा. तो जो इतना पोर्शन इसका सरफेस के साथ कांटेक्ट में, दैट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम. अब रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या है, बहुत कम सरफेस जो होता है ऑब्जेक्ट का, इसका इस रोलर का बहुत कम ऑब्जेक्ट जो होगा वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है. ये आया, जैसे आगे अब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. तो बहुत कम सरफेस जो होता है वो
जिसके ऊपर वो रोल करती है बॉडी, जैसे इसके ऊपर इसका बहुत कम पार्ट जो होता है वो कांटेक्ट में आता है। तो अगर कम पार्ट कांटेक्ट में आएगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कम होगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हो कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है दैट इज़ वो सबसे कम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन is slightly less than static friction and rolling friction is less than sliding friction and static friction। इसका मतलब क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट जो है दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, so in next video we will see whether this friction is useful or harmful. Okay, so till now you just study about this and go through this thoroughly.